Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session we are going to talk about percentage, and we are going to cover percentage in quite a few sessions. So this is the first session of percentage where we have picked up few questions of percentage that are important from the exam point of view. So let's start and see what kind of questions we can expect in the CSAT exam. Okay, so now let's start this one. So this says that Sohan spends 23% of the amount on an insurance policy, 33% on food, 19% on children's education. Okay, so basically, what is the total amount Sohan must have? That is 100% of the amount. So out of 100%, 23% is going for insurance. Okay, 33% is going on food. Okay, so on food it is going 33%. 19% is going on children's education. So children's education, and 16% he is investing in recreation. So 16% is going to go in recreation. Now the remaining amount, so remaining out of 100%, 23 plus 33 is 56%, right? 56 plus 19 is going to be what? 56 plus 19 is going to be 75%. 75 plus 16 is going to be 91%. So what is the remaining amount is going to be? That is 9% of the total amount, right? So 9% of total amount he is depositing, right? Now question says that 9% of total amount is equal to what? 540, right? So this comes out to be what? 16. So total amount comes out to be 6,000, and that's what question is telling us. Okay. Now question is saying how much did he spend on food and insurance policy altogether? So food and insurance policy are going to be 56%. So 56% of 6,000 we are looking for. Okay. So now I need to calculate 56% of 6,000. Now 0 cancels out. So 60 into 56. So it is going to be 0, 6 6 are 36, carry over 3, 6 5s are 30, 30 plus 3 is 33. So answer of this question comes out to be 3360. So what is the total amount he spent on food and insurance policy altogether? That's going to be 3360. Always remember, anything is always 100% of itself. Total is always 100% of total. So according to that, we need to solve this question that 100% is being bifurcated in different amounts. Insurance amount, food amount, children's education amount. So basically I'm going to add up all the things and see what is remaining. So that remaining becomes your deposit amount. So that's how we can solve this question, and it is a very easy problem. You can solve it in a minute or so. Now let's start this one. A class is divided into three sections named A, B, and C. Okay, so I got three sections: section A, section B, and section C. Section A has 10 students, section B has 20 students, section C has 30 students. So एक क्लास A में 10 हैं, 10 बच्चे हैं, क्लास B में 20 बच्चे हैं, क्लास C में 30 बच्चे हैं. सेक्शन ए से जितने बच्चे पास हो रहे हैं वो 20% है. सो 20% किसका? 10 का. कितने बच्चे पास हुए? 2. क्लास बी से कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 30%. 30% किसका? 20 का, क्योंकि क्लास बी में 20 बच्चे हैं. तो 20 का 10% होगा 2, सो 30% होगा 6. 3 टाइम्स दैट. ओके. क्लास सी में 30 बच्चे हैं, उसका 40% बच्चे पास हो रहे हैं. सो इसका मतलब 30 का 10% क्या होगा? 3. 40% क्या होगा? 12. सो टोटल क्लास से कितने बच्चे पास हुए? दैट इज गोइंग टू बी 40. That is going to be 20. And what is the total number of students we have? That is going to be 60. Okay. Now question is asking कि कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं क्लास में. सो कितने बच्चे पास हुए? 20. कितने में से पास हुए? 60 में से. सो कितना परसेंट? सो 20 बच्चे पास हुए. कितने में से पास हुए? 60 में से. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/3. और 1/3 कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होता है? 33.33% के. सो वी कैन गेट द आंसर लाइक दिस. दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन. क्या कह रहे हैं? एक इलेक्शन है, उसमें दो कैंडिडेट हैं. एक को 72% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं.
ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, टोटल वोट्स एंड टोटल वैलिड वोट्स आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो टोटल वोट में क्या होता है कि जैसे एक आदमी गया, उसने 2 लोगों को मार्क कर दिया, सो वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। कोई आदमी गया जिसने खाली ही छोड़ दिया, तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो जिन लोगों ने एक ही कैंडिडेट मार्क किया हुआ है, वो जो वैलिड वोट्स हैं, वो उन वैलिड वोट्स के 72% एक कैंडिडेट को मिला हुआ है जीतने वाला। तो जिसको 72% मिलेगा, मतलब 50% से ज्यादा मिलेगा, वो तो डेफिनेटली जीतेगा, राइट। 25% टोटल वोट के इनवैलिड है। टोटल वोट अपने 8200 है, कितने वोट्स जो हैं वो अदर कैंडिडेट के फेवर में, ठीक है। 8200 टोटल कैंडिडेट, टोटल वोट्स है, ठीक है। 25% जो है, 25% को मैं 25% काउंट नहीं करूंगा, 25% को मैं काउंट करूंगा 1/4। सो 8000 का 1/4 क्या होगा? 8000 का जो अपना 1/4 होगा, दैट इज 2000। 200 का 1/4 क्या होगा? 200 का 1/4 होगा 50। सो इसका मतलब 2050 जो वोट है वो अपने इनवैलिड वोट्स हैं। तो वैलिड वोट्स कितने आएंगे? 6150। ये अपने पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें से 72% वोट जीतने वाले को मिले, वैलिड वोट्स का 72%। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? 28%। वैलिड वोट्स का 72% एक बंदे को मिला, तो 28% दूसरे बंदे को मिला, राइट। सो बेसिकली दूसरे बंदे को 28% ऑफ 6150 वोट मिले, राइट। सो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरे बंदे को कितने वोट मिले? 28%, दैट इज 28/100 इंटू 6150। तो अपना काम सिंपली ये वैल्यू निकालना है, 0 से 0 कट गया, इसको और किसी तरीके से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 14, इससे काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कितना? 14 इंटू 123। सो बेसिकली 14 3 जा 42, बचा कितना? 4। 14 2 जा 28, 28 प्लस 4 32, कैरी हुआ 3। 14 1 जा 14 प्लस 3 17। सो बेसिकली हारने वाले कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट आएंगे? दैट इज 1722। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1722। दैट्स गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख चुके हैं। क्या कह रहे हैं? सुशील स्कोर्ड 103 marks in Hindi, 111 marks in science, 98 marks in Sanskrit, 110 marks in maths and 88 marks in English. टोटल जो उसका आ रहा है वो 85% मार्क्स है सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। टोटल मार्क्स कितने हैं? ठीक है, पहली चीज तो ये है कि मैं यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे सीधे दिख रहे हैं जो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, ये और ये। अब ये दोनों आंसर क्यों नहीं हो सकते, ये समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 110 नंबर का पेपर है तो 111 नंबर तो किसी के नहीं आ सकते, ठीक है। तो 110 नंबर का पेपर है, 111 नंबर पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम मार्क्स 111 से तो ज्यादा है, और 115 या 120 में से ही कोई आंसर हो सकता है, ठीक। अब सुशील के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? 103 आए, 111 आए, 98 आए, और क्या आया? 110 आया, और 88 आया। 5 सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स कितने आए? 3 1 4, 4 और 16 20, 20 का 0, कैरी हुआ 2, 2 1 3, 3 9 3 12, 12 और 8 20, और 1 21, कैरी हुआ 2, 2 1 3 1 4 1 5, 510 नंबर आए, ठीक है। अब जो 510 नंबर आए उसके, वो टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 85% है। सो 85% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। सो टोटल मार्क्स तो 17 से काट लेते हैं, 17 5 जा 17, कितना आएगा? 17 3 जा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6। सो टोटल मार्क्स हो गए 600। अब 600 मार्क्स कितने सब्जेक्ट्स के हैं? 5 सब्जेक्ट के। 5 सब्जेक्ट के मिला के टोटल मार्क्स 600 हैं, तो हर सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना होगा? 600 अपॉन 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 120।
सो पर सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए कितने 120 और 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए 600 एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट्स इजी टू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये, a combo pack having a bulb and a tube light that cost 52 rupees। ठीक है, अपने पास एक बल्ब है एक ट्यूब लाइट है, दोनों का कॉस्ट 52 रुपए है। ठीक है, सो बेसिकली बल्ब का कॉस्ट मान लेते हैं बी, ट्यूब लाइट का कॉस्ट मान लेते हैं टी। सो बी प्लस टी कितना आ जाएगा 52। बल्ब का कॉस्ट 20% कम हो गया, सो 20% कम हो गया मतलब 80% बचा। सो 80% ऑफ बल्ब प्राइस इज 0.8 बी। ठीक है, ट्यूबलाइट का प्राइस 50% बढ़ गया। सो ट्यूबलाइट का प्राइस 50% बढ़ गया तो कितना हो गया 1.5 टी, 1.5 गुना हो गया, राइट। और ये जो प्राइस है ये टोटल प्राइस आ गया 50 रुपए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ट्यूबलाइट का प्राइस क्या है। ठीक है, इस पूरे को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर समझेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आएगा 8b प्लस 15t एंड दैट इज इक्वल टू 500। ठीक है, अब हमको किसका प्राइस निकालना है, ट्यूबलाइट का प्राइस निकालना है। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8b प्लस 8t एंड दैट इज इक्वल टू 8 दूनी 16 1 40 8 इंटू 5 40 40 प्लस 1 41 41। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिंपली दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। काट दिया, कितना बचा, दैट कम्स आउट टू बी 70। 70 इज इक्वल टू 84। सीधे सीधे 7 से कट रहा है, अगर आपको 12 की टेबल आती है तो सीधे कटेगा और इसका आंसर आएगा 12। तो एक ट्यूबलाइट का कॉस्ट क्या होगा 12 रुपए एंड दैट्स गोइंग टू बी आवर ऑप्शन डी। ठीक, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सीधे अपना दो लीनियर इक्वेशन बना के परसेंटेज से सॉल्व करना बहुत आसान है। और एक बात ध्यान रखिए कि जब अगर कोई वैल्यू किसी चीज की वैल्यू 50% बढ़ेगी तो वो इनिशियल प्राइस का 150% हो जाएगी। इनिशियल तो हर चीज का 100% होगा, तो अगर 50% वैल्यू बढ़ गई तो इनिशियल प्राइस का 150% हो जाएगा। 150% इज 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। किसी चीज का प्राइस 20% कम होगा तो प्राइस कितना रह जाएगा, इनिशियली तो 100% है, 20% कम होगा तो 80% हो जाएगा। तो 80% इज व्हाट 0.8। 80% को हम 80/100 भी बोल सकते हैं। सो 80/100 इज 0.8। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो दैट्स हाउ वी कैन मेक द इक्वेशंस वेरी इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक फिश है, एक एक्वेरियम है, वहां पे कितनी फिश है 200 फिश है। ठीक है, 200 फिश हैं, 200 में से रेड कितनी है 99। तो 1% जो होगा वो नॉन रेड होंगी, राइट। रिमेनिंग जो 198 है वो कितनी होंगी अपनी रेड होंगी। सॉरी, इसको तो यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे रेड फिश को 98% बनाना है। और 98% कैसे बनाना है, रेड फिश को रिमूव करके। ठीक है, अगर रेड फिश को रिमूव करना है तो नॉन रेड फिश तो दो ही है। ठीक है, सो इनिशियली नॉन रेड फिश कितनी है 2, फाइनली नॉन रेड फिश कितनी है 2, क्योंकि नॉन रेड फिश में तो चेंज ही नहीं आया, राइट। सो बेसिकली अगर रेड फिश 98% है तो नॉन रेड फिश कितनी होंगी 2%। 2% किसका, टोटल फिश का। सो 2% ऑफ टोटल फिश इज इक्वल टू नॉन रेड फिश, दैट इज इक्वल टू 2। So that comes out to be 2/100 and that's equal to t, that's 2। ये कट गया, so t comes out to be what 100। so मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फिश एक्वेरियम में अभी कितनी होनी चाहिए 100। पहले कितनी थी 200, मतलब कितनी फिश रिमूव करनी पड़ेगी 100। so answer of this question comes out to be option D, that is going to be 100। so आपको रेड फिश को 1% कम करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फिश को 100 से कम करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये सुनने में बड़ा ऑड लगता है लेकिन रियलिटी यही है, परसेंटेज ऐसे ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक ऑटोमेटेड प्लांट है जहां पे असेंबली लाइन है। द रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज 10% इन जुलाई 1st, 6% in July 2 and combined rate of rejection was 9%। ठीक है, सो बेसिकली अपने पास दो डेट है, 1 जुलाई एंड 2 जुलाई। ठीक है, सो 1 जुलाई को ए
कंपोनेंट प्रोड्यूस हुए, 2 जुलाई को बी कंपोनेंट प्रोड्यूस हुए, ठीक है। ए में से 10% आपने रिजेक्ट कर दिए, सो रिजेक्टेड कितने हो गए 10% ऑफ ए, ठीक है। सो 10% को 10% नहीं लिखते, 10/100 लिख देते हैं। चलिए 2 जुलाई को कितने रिजेक्ट हुए 6%, 6% को अपन 6/100 लिख देते हैं, ठीक है। दोनों दिन मिला के कितने कंपोनेंट रिजेक्ट हुए, ये दोनों दिन मिला के कितने कंपोनेंट बने ए प्लस बी। अब टोटल कंपोनेंट का 2 दिन में 9% अपना जो है वो अपना रिजेक्ट हुआ है, सो टोटल कंपोनेंट का 9% रिजेक्ट हुआ है। तो 2 दिन में रिजेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, ये 2 दिन में रिजेक्टेड कंपोनेंट में ये, मतलब दोनों वैल्यू बराबर है, राइट। तो 100 तो कट गया अपना, यहां से क्या आया 10a प्लस 6b इज इक्वल टू 9a प्लस 9b। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि a शुड बी इक्वल टू 3b, ठीक है। a अपॉन b शुड बी इक्वल टू 3:1, सो यहां से सीधे अपना आंसर आ जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सो बस थोड़ा सोचना है अपन को कि पहले दिन कितना रिजेक्शन हुआ, दूसरे दिन कितना रिजेक्शन हुआ, और दोनों दिन को मिला के कितना रिजेक्शन हुआ। सो पहले दिन का रिजेक्शन प्लस दूसरे दिन का रिजेक्शन इज इक्वल टू दोनों दिन का कंबाइंड रिजेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। रीता ने सुनील से 25%, मतलब 1/4 ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सुनील ने एस इन्वेस्ट किया हुआ है तो रीता ने 5/4 एस इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब सुनील ने अभिनव से कितना कम इन्वेस्ट किया हुआ है, 30% कम, ठीक है। सो बेसिकली अभिनव ने अगर ए अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो सुनील ने कितना किया होगा, ए से 30% कम, मतलब ए का 70%, ठीक है। तो इसका मतलब 7/10 ए ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली एस की वैल्यू आ गई 7/10 ए, एस की वैल्यू आ गई 5/4 इंटू 7/10 ए, अब और अभिनव की वैल्यू आ गई ए, तो यहां से क्या हुआ 5/2, तो मतलब 7/8, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली 7/10। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 8 है। सो 10 और 8 का एक कॉमन मल्टीपल उठा लेते हैं, 10 और 8 का एक कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 40 आएगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभिनव ने टोटल 40 रुपए इन्वेस्ट किए। नाउ यहाँ पे जो 6000 दिया हुआ है इसका कोई सेंस नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल रीता का इन्वेस्टेड अमाउंट और सबका इन्वेस्टेड अमाउंट का सम पूछ रहा है। तो मैं सीधे बस इतना लेके चल रहा हूँ कि अभिनव ने 40 रुपए इन्वेस्ट किया, तो सुनील ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 7/10 ऑफ 40, तो इसका मतलब सुनील ने 28 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। रीता ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 7/8 इंटू 40, 35 इन्वेस्ट किया होगा। सो तीनों लोगों ने मिला के कितना इन्वेस्ट किया, सो 8 5 13 प्लस 0 13, सो एक कैरी हुआ, 4 1 5 3 8 2 10। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया 103 रुपए। उस 103 रुपए में रीता का अमाउंट कितना है 35। सो रीता का अमाउंट और तीनों लोगों का जो टोटल अमाउंट है उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होना चाहिए 35:103, एंड दैट्स ऑप्शन डी। सो बेसिकली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन में जो इस टाइप के नंबर होते हैं वो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। लोग जनरली क्या करेंगे, इसको 6000 लेके सॉल्व करेंगे। तो जब आप 6000 लेके सॉल्व करोगे तो उससे कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा, उससे कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो लोग क्या करते हैं, इसमें 60,000 के बने, फिर सुनील का अमाउंट निकालेंगे, फिर रीता का अमाउंट निकालेंगे। वो अमाउंट निकालना बहुत आसान नहीं है, और उसके बाद रेशियो निकालना है, तो बड़े नंबर्स होंगे तो रेशियो में आपको इवेंचुअली कैंसिल भी करना पड़ेगा। सो जब लगभग सारी वैल्यूज परसेंटेज में गिवन है और फाइनल आंसर आपका रेशियो या परसेंटेज में ही आ रहा है, तो आप कई बार इस टाइप के नंबर्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज by 20%, Amir Chand is intends to spend only additional 5% on rice, वो अपने क्वांटिटी को कितना रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो बेसिकली अपन क्या लेके चल रहे हैं कि अमीर चंद जो है वो 100 रुपए पे राइस ले रहा है इनिशियली,
अगर वो अपने कंजम्पशन को कम नहीं करता, जितना पहले खा रहा था उतना ही अभी भी खा रहा है, तो अगर राइस बढ़ गया तो उसका एक्सपेंडिचर तो 120 होना चाहिए, राइट। अगर वो अमीर चंद 100 रुपए का इनिशियली राइस खा रहा था, और अगर राइस का 20% रेट बढ़ गया और वो कह रहा मैं जितना कंज्यूम कर रहा था, मैं 10 किलो कंज्यूम कर रहा था, अभी भी 10 ही किलो कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका एक्सपेंडिचर 120 होना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं केवल 5 रुपए अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाऊंगा, मतलब 100 का केवल 105 स्पेंड करूंगा। तो 100 का 105 स्पेंड करेगा, लेकिन रेट तो बढ़ चुका है। इसका मतलब उसको कंटेंट क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्या मैं पहले 10 किलो खा रहा था, अब 10 नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा, राइट। तो उसको कितना कम करना पड़ेगा, उसको 15 रुपए कम करने पड़ेंगे। कितने में से कम करने पड़ेंगे, 120 में से, राइट। सो कितना परसेंट आएगा, इंटू 100, सो 1/8, so 1/8 into 100 is 12.5%, and that is going to be option C. So we can directly solve this question by using this logic, and it won't take a lot of time if you understand the concept thoroughly. ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ज्यादा सोचने का नहीं है, आपको बस बेसिक लॉजिक अप्लाई करना है और आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए, if anyone has any doubt, you can just drop a message in the comment box and we'll get back to you. Thank you.